Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are again continuing with the Indian judicial doctrine. This is the third lecture that we are starting today. So far we have covered 4 judicial doctrines, right? Today in today's class we are going to cover the next 2 judicial doctrines, and that will make the final count of judicial doctrines that we have covered to 6. तो अभी तक हमने ना आज की क्लास के बाद 6 जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स हम कवर कर लेंगे. जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव लॉ ऑप्शनल और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम और जीएस पेपर 2 और एसए पेपर, राइट? फॉर ऑल दीज पेपर्स दिस जुडिशियल डॉक्ट्रिन यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑल्सो ना, दैट इज वाई. ओके, ये इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है, लॉ का पार्ट है, ये इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 के लिए, मेंस में और प्रीलिम्स के लिए. Okay, so let's start. शुरू करते हैं आज की क्लास. Also the class PDF is uploaded on our Telegram channel. You can directly download the class PDFs from there. क्लास के notes, resources, PDF सारे हम Telegram channel पे upload कर देते हैं, तो वहां से आप उसको download कर सकते हो. Okay, so far we have studied the basic structure doctrine. We have studied the doctrine of laches, doctrine of pith and substance, and doctrine of severability. Today we are going to study the doctrine of eclipse and the doctrine of harmonious construction. These 2 doctrines are very important. If you had given the Unacademy Civil Services Championship exam, then you must have come across question number 1, which was on the doctrine of harmonious construction. Okay, so we are going to study the doctrine of harmonious construction today. What do you mean by the word harmonious? What do you mean by the word construction? How these 2 words are related? We are going to delve deeper into that aspect. All right. Now here you can see that in the starting class, in the initial class, I told you what are doctrines. Doctrine means a principle, a belief, or a theory or a principle of law. And there are total, वैसे तो बहुत सारे doctrines होते हैं. There are many doctrines, but there are 8 basic types of doctrines. We have covered basic structure, laches, piths and substance, severability. Today we will cover eclipse and harmonious construction. Then we will be left with these 2 doctrines, doctrines of casus omnissus and territorial nexus. We will cover them in the next class. Okay, and I am providing you the handmade notes. As you can see, handmade notes provide कर रही हूँ मैं आपको, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके. Okay, चलो let's start. Before we start our session, here's a small announcement for all of you. We have one subscription to Crack It All offer from Unacademy. Unacademy has launched this one subscription to Crack It All. This is the offer which is going to provide you total 35% discount on your plus subscription. So if you take 1 year subscription or if you take 2 year subscription, and that too with optional GS plus optional subscription, then you will be in total getting 35% discount. 10% discount if you use this code ARPITA10. Okay, and 25% discount if you are subscribing to the optional also. अगर आप सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो इस कोड को यूज करके. अगर आप ऑप्शनल और GS दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तब आपको इस 10% डिस्काउंट के साथ साथ 25% डिस्काउंट और मिलेगा अनअकैडमी प्लस की तरफ से. ओके, सो द ऑफर्स लास्ट डेट इज जून 23rd. उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो 23rd जून तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कॉम्बो पैकेज का, तो टोटल 35% डिस्काउंट आपको मिलेगा. ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टुडे एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी CSE. The links are given below in the description box below the video. So doctrine of harmonious construction. हारमोनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप हार्मनी के साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के किसी चीज को सॉल्व करो. हार्मनी मीन्स व्हेन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्ड, दैट इज हार्मनी. ठीक है, नाउ देयर आर 2 words. First is interpretation, second is construction. Interpretation means deriving the true meaning. आप किसी चीज को इंटरप्रेट करते हो, उसका मतलब क्या होता है कि आप उसका मीनिंग निकाल रहे हो. ठीक है, तो interpretation means when you take out the true meaning of a particular topic. And what do you mean by construction? Through that true meaning, when you deduce conclusions, that is construction. उस मीनिंग के बेसिस पर, उस मीनिंग के बलबूते पर जब आप कंक्लूजन निकालते हो, अपना ओपिनियन फाइनली बताते हो, कंक्लूड करते हो उस टॉपिक को, वो
कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी इज क्लियर। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैन बी अंडरस्टूड वेल विद दिस example, with the help of this example. We have a husband, we have a wife and they both have two kids, kid A and kid B. ये हो गया चुन्नू और ये हो गए मुन्नू, ठीक है। चुन्नू मुन्नू हो गए और ये पापा मम्मी हो गए। Husband brings let's say vegetables while returning from the office. Husband लेकर आते हैं vegetable. For example ये लेकर आते हैं first vegetable is let's say brinjal, right? And the second vegetable is let's say cauliflower. ओके ये दो वेजिटेबल्स लेकर आते हैं बच्चों के लिए। किड ए लव्स ब्रिंजल एंड किड बी लव्स कॉलीफ्लावर। Now, when the wife take over these vegetables, kid A and kid B, they run to their mother and they say that I want to eat brinjal and the other one says I want to eat cauliflower. दोनों बच्चे भागे भागे मम्मी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी, किड ए बोलता है कि चुन्नू बोलती है कि मुझे तो ब्रिंजल खाना है और मुन्नू बोलता है मुझे कॉलीफ्लावर खाना है, ठीक है। Now, the wife is in confusion. अब वाइफ बोल रही है कि अगर मैंने ब्रिंजल बनाया सिर्फ तो मुन्नू गुस्सा हो जाएगा और अगर मैंने कॉलीफ्लावर बनाया तो चुन्नू गुस्सा हो जाएगी। हाउ टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट? If I make only brinjal, then kid B will feel offended. If I make only cauliflower, kid A will be upset. How to resolve this situation? So she makes little bit of brinjal and little bit of cauliflower. थोड़ी सी brinjal की सब्जी बना देती है, थोड़ी सी cauliflower की बना देती है, right? तो both the kids are happy now, right? So that is हार्मोनियसली सॉल्विंग एनी सिचुएशन। इसको बोलते हैं कि पीस के साथ, हार्मनी के साथ, एमिकेबली आप किसी सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो इन द सेम वे where there is a conflict between statutes provisions between union and state list, then the rule of harmonious construction needs to be adopted by the Supreme Court. मान लीजिए कोई प्रोविजन लागू किया है, अब यूनियन और स्टेट लिस्ट के बीच में झगड़ा हो रहा है उस प्रोविजन को लेके कि वो जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में आएगा कि स्टेट लिस्ट में आएगा। उस केस में हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इट वाज ब्रॉट अबाउट टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन डिफरेंट लिस्ट मेंशन्ड इन द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन द वेरियस लिस्ट। इट्स अ थंब रूल टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टैचू। ओके, तो यहाँ पर हर स्टैचू का जो पर्पस और इंटेंशन होता है उसको एज अ होल पढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ प्रोविजन हैज बीन launched or a subject is being put under a state list or union list, then the entire provision has to be read, right? When an entry of one list overlaps with that of another list, at that time harmonious construction doctrine is used. For example, education सब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट और यूनियन लिस्ट लड़ रहे हैं या वाटर सब्जेक्ट को लेकर लिस्ट में आपस में लड़ाई हो रही है कि ये कौन से लिस्ट में जाएगा, उस केस में हम डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड दिस डॉक्ट्रिन इन द केस ऑफ टीकाराम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। Another important point of harmonious construction principle is that the provision of two sections respectively cannot defeat each other unless the court is unable to find a way to reconcile their differences. जब तक कोर्ट कोशिश कर रहा है कि इन दोनों स्टेट और यूनियन लिस्ट के बीच में अगर कोई पंगा चल रहा है सब्जेक्ट को लेकर, उसके बीच का पंगा हम सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक दोनों ही जो सेक्शंस हैं वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर दोनों को हारा हुआ, दोनों में से किसी एक को भी हम डिफीटेड नहीं करार करेंगे, ठीक है। सो व्हेन इट्स डिफिकल्ट टू टोटली रिकंसाइल द डिस्टिंक्शंस और differences in the conflicting provisions, then the court must decipher them in such a way so that effect is given to both the provisions. For example, मान लो देखो, so in this case brinjal and cauliflower, the wife was confused as to which vegetable she should make, so she made some of the brinjal vegetable and little bit of cauliflower vegetable in small quantities. In the similar way, if the court is not able to reconcile the differences between the two you can say state or union list, in that case they have to decipher the provision in such a manner that both the parties are satisfied. ओके, पॉइंट क्लियर। अगर डिसीजन कोर्ट नहीं निकल पा रही है तो किसी इसी तरीके से प्रोविजन को डेसिफर या इंटरप्रेट करेगी कोर्ट की ताकि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड रहे, दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। And the courts must also keep in mind interpretation should not make the provision of the statute or law ambiguous. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से कोर्ट ने इंटरप्रेट किया उस सब्जेक्ट को कि पूरा का पूरा लॉ ही चेंज हो गया, पूरा लॉ ही यूजलेस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या फायदा हार्मनी का, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो दीज आर द कंडीशंस। Now coming on to the next doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse. Now before we move forward to this doctrine, here's a small announcement for all of you.
अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। देखो हर संडे ना अनअकैडमी लेकर आता है कॉम्बैट, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे 11 बजे ये टेस्ट होता है, ठीक है। एंड इस टेस्ट में ना आपको स्कॉलरशिप्स जीतने के चांसेस है आपके। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। लाइव टेस्ट है जो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से दे सकते हो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना और ये कोड यूज कर लेना अर्पिता 10, आज के आज इनरोल कर लो क्योंकि संडे को ये टेस्ट होने वाला है। आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और इसी टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जिनके ऊपर हम क्लासेस भी बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस टेस्ट को जरूर दो, लिंक दिया हुआ है नीचे सब्सक्रिप्शन का और इनरोलमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नाउ इट स्टेट्स दैट एनी रूल व्हिच इंटरफेयर्स विद फंडामेंटल राइट्स इज इनवैलिड। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि कोई भी रूल जो फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करेगा, इंटरफेयर करेगा, उसको हम बना देंगे इनवैलिड। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 दैट यू हैव टू रिमेंबर। इट मींस दैट existing law that is inconsistent with the fundamental right or it is interfering with the fundamental right or it is harming the fundamental right, भले ही वो inoperative हो जाए, ठीक है, बट इस तरीके का लॉ इंटायरली डेड माना जाएगा। भले ही इनऑपरेटिव हो जाए बट इंटायरली डेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट के साथ वो नहीं पैरेलली चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे इंटायरली डेड मान ले, ऐसा नहीं होगा। भले ही वो इनऑपरेटिव होगा, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते उस लॉ को, बट वो इंटायरली डेड नहीं होगा, ठीक है। तो हियर बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस रेलेवेंट फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एलिमिनेटेड। फंडामेंटल राइट में कुछ अमेंडमेंट डालकर, ठीक है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है लॉ का और फंडामेंटल राइट का, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं सो दैट एक्लिप्स वैनिशेस और जो पूरा लॉ है वो वैलिड हो जाए, ठीक है। अगर कोई लॉ बना रही है गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉ इंटायरली डेड है, इनऑपरेबल है बट इंटायरली डेड नहीं है। हम फंडामेंटल राइट्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके हम उस लॉ को वैलिड कर सकते हैं। पहला केस जो आया था इस डॉक्ट्रिन के अंदर वो था बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कोई भी लॉ जो कॉन्ट्रोडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो परमानेंटली मरता नहीं है लॉ, बस वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस वाज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और एक्लिप्स को कैसे हटा सकते हैं? थोड़ी सी अमेंडमेंट करके। Okay, so these were the two doctrines that we have discussed today. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed this lecture, do not forget to like, share and subscribe. And also, do not forget to subscribe because अगर आप subscribe करोगे तो जो भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड होगी आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। Thank you and have a nice day.